हमारा ये टॉपिक है हैकिंग डिजिटल जेंडर नॉर्म्स। तो शुरू करने से पहले मैं ये सेट करना चाहती हूँ कि आज का सेशन एकदम बातचीत कॉन्वर्सेशनल होगा और आपसे भी एक दूसरे से भी जानेंगे सीखेंगे, क्योंकि हमारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, राइट। तो बहुत कॉन्वर्सेशनल और इनफॉर्मल सेशन है, ये कोई लेक्चर नहीं है। तो काफ़ी सारी वीडियोस देखेंगे, शेयर करेंगे, एक्सपीरियंसेस हैं। तो जेंडर नॉर्म्स क्या है? जो जेंडर के नियम बनते हैं, है ना, जैसे महिलाएं, लड़कियां, क्वेयर, ट्रांस लोग, जैसे हमारी फिजिकल या ऑफलाइन जिंदगी में जेंडर के नियम को नेगोशिएट करते हुए हमेशा चलते हैं, वही सारी चीज़ें जो है डिजिटल दुनिया में भी रेप्लिकेट होती है। So gender norms, they really sit like an invisible layer below all of our digital activity. और काफ़ी टाइम हमने देखा है, फॉर एग्जांपल घर में अगर एक शेयर्ड फ़ोन है जो फैमिली मेम्बर्स में शेयर होते हैं, तो कोविड के टाइम पे जब ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई थी, भाई को ही बस वो फ़ोन मिलता था। तो जो मम्मी का फ़ोन है वो भाई लेके अपना पढ़ाई करता था और बहन की पढ़ाई, उसकी एजुकेशन छूट जाती थी। तो ये जेंडर का नियम है, जिसकी वजह से डिजिटल जो उपयोग है, डिजिटल जो एक्सपीरियंस है, उसमें डिफरेंस आता है। और हमारा ये मानना है और हमारे एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए या फिर इसको एड्रेस करने के लिए ओनली टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन दे आर नॉट इनफ। उसके लिए हमें जेंडर नॉर्म्स को तोड़ के देखना पड़ेगा। ये जो जेंडर के नियम बने दुनिया दोनों जगहों उसको डीपली उसके बारे में उसको अनपैक करना और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बस टेक्नोलॉजी रिलेटेड सोल्यूशन ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने ये भी देखा है दैट इवन इफ घर पे एक फ़ोन है, फ़ोन का एक्सेस तो आ गया, लेकिन घर पे जो जेंडर के नियम बने हैं वो महिलाओं को, क्वेयर, ट्रांस लोगों को स्टॉप करती है वो फ़ोन आज़ादी के साथ या डिजिटल स्पेस को आज़ादी के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट हम थोड़ा बैकग्राउंड में रख के आगे बढ़ते हैं। एक हम छोटा सा वीडियो देखेंगे। ये बता क्या है ये बंदा शर्मा रहा है। आप ही का कहने का मतलब है कि बहुत शर्मीली है, लेकिन बैंगन देख के उनके पसीने छूट गए। A phone off one's phone. Is that too much to ask? It's rare for an Indian woman to have unhindered access to her own phone, even in 2021. From rural India, there are regular reports of families thrashing teenage girls for talking on their phones. In fact, Khab Panchayats in North India have labelled women who use mobile phones in public as asabhya betiyan or uncultured daughters. But even in urban media and pop culture, women's privacy within the household has conventionally been an absurdity. Because why would a truly sanskari girl, the obedient daughter, devoted wife, doting mother with a spotless conscience, ever have anything to hide? कितनी मेरे अगली बार ना सीवी वगैरह में देखते देखते हाँ यार भाई की कुटाई हो रही मुझे वजह से। And this attitude is reflected in many different ways. Families often forbid young girls from going out of their homes alone, and leisure time both inside and outside their homes is almost always monitored on the pretext of their safety, be it through chaperones sent by their parents or tracking apps installed on their phones. Post-marriage and even more so post-motherhood, the idea that an Indian woman would want privacy is almost absurd. Even Indian pop culture portrays a married woman out alone as an abnormality, a sign of neglect or some kind of problem at home. And it's not just the family. In the name of protecting women from harassment in public spaces, even the state has opted for surveillance methods that ironically monitor women and not perpetrators. The measures range from local police stations tracking women who are working away from their parents' homes to facial recognition cameras that track distress on women's faces. But where does this mindset come from? On the surface, a woman can't be left alone for her own safety.
Women are considered to be at high risk of sexual violence from the outside world from a young age. And so we reinforce the idea that they are the weaker sex who need their fathers, brothers or husbands to protect them. But if you look deeper, there's another reason for why women are monitored this much. A woman spending unsupervised time is actually scary for one simple reason. That she will get out of her family's control and break the strict code of behavior that society expects women to follow. Keeping a woman under constant surveillance then becomes a way to train her to be the right kind of woman. Someone who feels no need to talk to boys over the phone, who has no reason to lock the door to her room. Someone who is always careful inside and outside the home to maintain a good reputation. We reinforce these expectations by repeatedly claiming that a woman's rightful place is within her home, where she can be protected and dedicate her time to be in service of others. Unfortunately, in India, even discussing a woman's right to privacy is often dismissed as an elite issue. Because we're a country where most people live in joint families without enough physical space to even be able to spend time alone, people think privacy is a luxury few should expect in India. But actually, dismissing women's need for privacy creates a further divide, because while men have access to leisure spaces outside the home, most women are usually confined inside, creating a huge gap which often goes unacknowledged. And this impacts women's emotional and mental health. Women are more likely to be emotionally dependent in relationships because they are raised to not value individuality and alone time. But here's the thing. Privacy and the freedom to do what we want with our time is a vital human need that allows us to reflect, relax, and to gain a better understanding of ourselves. Not only does it rejuvenate and enrich us physically, emotionally, and intellectually, but it can actually result in some of our best ideas. It's time we build a culture that values and respects women's needs for this privacy, online and offline, not by restraining or monitoring them, but by changing social standards in a way that gives them the control of their own time and space. That's it for our latest video in the Overthinking It series. If you enjoy overthinking with us, जहाँ पे यहाँ पे वीडियो का थीम समझ में आया, राइट? कि मतलब लड़कियों को, महिलाओं को फोन की क्या जरूरत है, उनको फोन में प्राइवेसी या पासवर्ड लगाने की क्या जरूरत है, और ये एक लग्जरी की तरह, फोन का इस्तेमाल एक लग्जरी की तरह रादर देन एक नीड या फिर एक इच्छा, वो चॉइस या फिर वो नीड को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए इसको एक लग्जरी, एक एडिशनल, मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे देखा जाता है लड़कियों को, महिलाओं के लिए, राइट? तो ऐसे कुछ आपके एक्सपीरियंसेस है? क्या आपने दूसरे लड़कियों से बात करते हुए सुना है कि घर में जेंडर के नियम बने हैं फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर, या फिर पर्सनली भी कभी कभी हमें घर में टोकते हैं कि फ़ोन तभी इस्तेमाल करने को मिलेगा अगर पासवर्ड नहीं लगाओगे, अगर कुछ छुपाने का नहीं है तो पासवर्ड क्यों लगाना? ये ज़्यादातर महिलाओं को कहा जाता है, और कहा जाता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए फ़ोन मत इस्तेमाल करो। काफ़ी टाइम हमने ये भी सुना, वेस्ट बंगाल में हम जब वर्कशॉप कर रहे थे तो लड़कियाँ बोलती थी कि मम्मी पापा को लगता है फ़ोन आने से शादी करके भाग जाते हैं, मतलब फ़ोन की गलती, कोई शादी करना और ये शादी करने का जो चॉइस है या फिर घर से भागने का जो इच्छा है, ये फ़ोन की गलती। फ़ोन आया मतलब लड़कों से बात करेगी, शादी करेगी, भाग जाएगी। तो ऐसे प्रोटेक्शनिस्टिक तरीके से देखा जाता है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑटोनॉमी और एजेंसी। मतलब क्या हम खुल के डिजिटल दुनिया में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? काफ़ी महिलाएं, काफ़ी क्वेयर ट्रांस लोग, जो LGBTQ कम्युनिटी के लोग होते हैं, अलग अलग जेंडर सेक्सुअलिटीज़ के लोग होते हैं, वो हमने देखा है कि खुल के नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं इन सारी जेंडर नियमों। और अगर पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, अगर उनका सोशल मीडिया का अकाउंट है, चलो मतलब फेसबुक सब इस्तेमाल करते हैं, तब भी उनको लगता है कि वो इन जगहों पे बिलोंग नहीं करते, क्योंकि बहुत बाधाओं से भरी हुई ये जगहें हुई। तो अगर हम अभी थोड़ा बातचीत करेंगे और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि कुछ ऐसे बाधाओं के बारे में सोचेंगे
और हम ये इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ऐसी दुनिया तक पहुंच सकते हैं जहाँ पे ये बाधाएं उतनी नहीं है और जहाँ पे विमेन, गर्ल्स, LGBTQ कम्युनिटीज वो खुल के पार्टिसिपेट कर पाए डिजिटल दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्कशॉप में हम कुछ एक्टिविस्ट से मिले जो कि लड़कियों महिलाओं से काम करते हैं उनके साथ, और उन्होंने कहा कि कोविड के टाइम में एक लड़की को अपने घर से फोन मिला था क्लासेस करने के लिए, और उस फोन के जरिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करती थी। तो एक दिन उनके मम्मी पापा ने उनके फोन से वो मैसेजेस पढ़ लिए और उसके बाद उसका फोन ले लिया और फोन के साथ साथ उसका पूरा घर से निकलना बंद कर दिया, उसके ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गए। तो जब वो एक्टिविस्ट जो काम करते हैं वो गए उनके मम्मी पापा से बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए, तब उन्होंने कहा कि अभी ट्रस्ट मतलब टूट चुका है। एंड जब उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ठीक है फोन ले लो बट एटलीस्ट कॉलेज जाने दो, एटलीस्ट बाहर जाने दो या कॉलेज जाने दो, तब वो लोग बोले कि नहीं अब इसका शादी ही करवाना है बिकॉज ये फिर बिगड़ जाएगी फोन की वजह से। तो हम ऐसे कैसे इमेजिन कर सकते हैं डिजिटल दुनिया या फिर डिजिटल स्पेसेस जहाँ पे ये बाधाएं नहीं है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल प्राइवेसी, ये जो स्किल्स चाहिए होते हैं प्लेटफॉर्म्स नेविगेट करते हुए, हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी है जैसे आपने कहा, क्योंकि वो नॉलेज नहीं होती कई लोगों के पास, और हम में से बहुत लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि अच्छा मेरे पास ये ऑप्शंस है मुझे मेरी डिजिटल सुरक्षा बरकरार रखने के लिए। लेकिन काफी टाइम सुरक्षा का मतलब इस नजरिए से देखा जाता है जिसको बोलते हैं सेल्फ सेंसरशिप, मतलब खुद को सुरक्षित रखना है तो फेसबुक बंद कर दो या फिर फेसबुक के सारे पोस्ट तुम हाइड कर दो, सब कुछ प्राइवेट कर लो, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों जरूरी होता है कि मैं खुद पे रोक टोक लगाऊं सेफ रहने के लिए, राइट? जैसे ऑफलाइन जिंदगी में असली रियल जिंदगी में होते हैं वैसे सेम डिजिटल दुनिया में भी बोलते हैं कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम घर से मत निकलो, तुम ऐसे कपड़े पहनो, सेम तुम अपना प्राइवेसी लगाओ। तो इस चीज को हम जरा तोड़ के देखेंगे और यहाँ अभी आप लोग को जैसा कर रहे हो या फिर दूसरों से सुना हो कि ये लोग ये कर रहे हैं टू नेविगेट दिस जेंडर नॉर्म्स, ये जेंडर बाधाओं को ओवरकम करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज क्या लड़कियों महिलाओं कुछ करते हैं अभी? फॉर एग्जाम्पल जो LGBTQ काफी लोग होते हैं वो लोग डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए वो अनोनिमस अकाउंट बनाते हैं, अपने नाम से अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि उनको प्राइवेसी मतलब जेंडर और सेक्सुअलिटी रिलेटेड उनको प्राइवेसी का कंसर्न होता है, तो वो कुछ दूसरे नाम से अकाउंट बनाते हैं, वो उनका तरीका है ये चीज नेविगेट करने के लिए। फिर हमने देखा लड़कियों को काफी बार ये प्रेफरेंस होता है कि प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन ले रादर देन पोस्टपेड, क्योंकि पोस्टपेड में वो घर पे बिल आता है, पेरेंट्स को पता चलता है। तो प्रीपेड अलाउस मोर कंट्रोल एंड मोर चॉइस कि आप कितना इस्तेमाल करो, कितना टाइम बात करो, कितना इंटरनेट इस्तेमाल करो। तो ऐसे और काफी टाइम ऐसे होता है फैमिली को ब्लॉक करते हैं, सोशल मीडिया पर फैमिली को ब्लॉक करते हैं, कुछ पोस्ट फैमिली से हाइड करते हैं, फैमिली के लिए एक गुड गर्ल इमेज जो है वो बना के रखते हैं, और जिनके साथ हम कंफर्टेबल है, मेरे भी मम्मी पापा ब्लॉक है, तो मतलब जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ मैं उनको अपनी तस्वीरें सब कुछ मेरा पूरा एक्टिविटी में खुल के दिखाती हूँ, जिसको नहीं पसंद मैं हिडन वाले लिस्ट में रख देती हूँ। हमारी डिसीजन हम कैसे सुरक्षित रहना चाहते हैं हमारी खुद की चॉइस है, हमें ऑप्शंस पता होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली जो आपके लिए काम करे शायद वो मेरे लिए ना हो। तो अलग अलग लोगों के ऐसे अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं और स्ट्रेटजीज होते हैं ये जेंडर बाधाओं को मतलब नेविगेट करने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे बॉडीली इंटेग्रिटी, मतलब हमारा जो शरीर है वो हम ऑनलाइन दुनिया में भी रखते हैं, वो फोटो के जरिए वो मतलब हमारा जो परिचय है, हमारा जो शरीर है, फोटो वीडियो, काफी लोग रील्स वगैरह बनाते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, राइट? तो हमारे शरीर को हम एक तरह से डिजिटल दुनिया में रख रहे हैं और उस वजह से या फिर उससे जुड़े हुए काफी ऐसे जेंडर नियमों की वजह से माना जाता है कि लड़कियों महिलाओं का शरीर जो है जैसे ऑफलाइन जिंदगी में उसको पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता है, वही चीज डिजिटल दुनिया में वहाँ पे भी कमेंट्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो जैसे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है।
So we'll just watch one video now. That's an example of bodily integrity. And then we'll talk about how it makes us feel, what we think about the case, whether we have seen anything similar, whether any of our friends have said anything similar. And we'll just explore that later. These guys were talking about girls who are minors, and it's not just about talking about minors, it's just about talking so disgustingly about girls in general. Sending nudes is not an issue. Being yourself is not an issue. Till the time you are putting anyone else's well-being or happiness at stake. Honestly, it's their body, it's their life, and they can do whatever they want to do with it. But it's the guys who spread all of this. They had no right to. The girls were foolish for trusting them, yes. But they were not foolish for doing what they did. Posting without clothes or wearing, I don't know, spaghetti tops. If you're wearing shorts, you get the same comments. Nothing different. So nudity is no different if you're actually just wearing normal clothes. And you get the same kind of comments. And अरे जब वो करे तो फिर प्रॉब्लम है. अगर ना करे तो प्रॉब्लम है. अगर कुछ भी ना पहने तो भी प्रॉब्लम है. तो करें क्या? And then they have problem with burqa also. It's so wrong of the religion to cover the women. Then what does a person do? Not exist? Why do you wear a bra when you don't have anything? And I'm like, excuse me? Have you seen Meher's Eidgah? I was so like Delhi ki metro nikal jayegi and India gate. Like if we are talking about guys being filthy, we also have to acknowledge that there are girls doing the same things as well. There was this one time I didn't almost go to school because my teacher noticed that a pink bra strap was showing twice. Oh my god, she's wearing pink bra strap. She wants attention from guys. तुम्हारा नाम आ रहा है. Don't do this. गंदा होगा. तुम्हारे बारे में गंदा बोला जा रहा है. That's what has been many people's upbringing. That this is wrong. This is wrong. This is wrong. You can't be yourself. You can't dress this way. You can't do this. You can't do that. Having supportive parents is like considered a luxury. That's so messed up. All of it has one root. Yeah, so this entire video was specifically about the Delhi's boy locker room case. I'm not sure if have you guys heard of it? Yes. Yeah, you heard of it. So yeah, basically in the video she's just talking about the situation of the girls in those pictures, right? They trusted certain guys who they thought were their friends, or they must have thought they were involved with them. So there was a mutual understanding. But then once they shared these images, they were exploited, and these images were put online in private spaces. And these men were saying things about these women's bodies that these women probably did not want said. They did not want these other men to see these images. So there's like a serious invasion of like their boundaries. तो ये बॉयज लॉकर रूम बोल के एक केस हुआ था जहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना था बॉयज लॉकर रूम नाम का, जिस ग्रुप में कुछ तो लड़के थे. उन्होंने अलग अलग जगहों
से लड़कियों के थोड़े इंटीमेट इमेजेस या फिर जो उन्होंने किसी को ट्रस्ट करके शेयर करा हो, ऐसे कुछ इमेजेस, ऐसे कुछ फोटोज वीडियोस लेके वो लोग बहुत गंदी बातें उस ग्रुप में करने लगे। तो यहाँ पे जो लड़की थी वही बता रहे थे कि अगर अपनी खुल के किसी को ऐसे इमेजेस, इंटीमेट इमेजेस शेयर करो तो भी प्रॉब्लम है, पूरा ढक के कपड़े पहनो तो भी उनको प्रॉब्लम है कि इतने ढक के घूंघट क्यों कर रहे हो, क्यों पहन रहे हो, तब भी प्रॉब्लम है। चेहरा लेके मतलब पेरेंट्स, टीचर्स, ये जो पेट्रियार्की के सारे रखवाले हैं, हर एक लेवल पे बॉडी को एकदम इतना गौर से वो लोग देखते हैं और एकदम से ऐसे एनालाइज करते हैं। वो वही चीजें डिजिटल दुनिया में भी, सोशल मीडिया वगैरह पर भी देखने को मिलता है। तो ये बता रहे हैं कि जेनरेशनली जो नॉर्म्स चलते आ रहे हैं वही मतलब पास ऑन भी होते हैं। इवन टीनेज यंग लोग भी वैसे ही अभी सोच रहे हैं जेंडर के नियमों को लेके। और ये जो बॉयज लॉकर रूम केस था, ये एक अर्बन शहर में ऐसे हुआ, तो अर्बन जगह या फिर ऐसा नहीं है कि बस गाँव में होता है, अर्बन एकदम सिटीज में भी यही मेंटालिटी है, यही नियम चलते रहते हैं जेंडर से जुड़े हुए। और अर्बन होने का मतलब ये नहीं कि मतलब जेंडर इक्वल हो गई है सोसाइटी। So it's not like the digital exists separately. So it feels like a universal experience that a lot of people tend to go through. Any other examples? Like, have any of you also like faced some sort of doubts in your head when you're sending a certain image or you're putting up something online that is of yourself? Anything like that any of you would like to share? मैं जरा ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो जैसे हम काफी टाइम कुछ अपने पसंद के कपड़े पहन के निकलने से पहले हम सोचते हैं, राइट, वो लोग क्या कहेंगे, क्या ये प्रॉपर है, क्या ये ड्रेस ये एरिया के लिए प्रॉपर है, क्या ये ड्रेस ये ओकेजन के लिए प्रॉपर है ना। काफी लड़कियों से हम मिलते हैं जो घर से दुपट्टा लेके निकलते हैं, फिर गाड़ी में या फिर कैब में वो निकाल देते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें ऑनलाइन दुनिया में फोटो डालने के बाद भी हम सोचते हैं, अरे ये कौन कौन ये फोटो देखने वाला है, क्या ये उनके आंखों के लिए प्रॉपर है। तो लोगों के आंखों के हिसाब से हम अपना शरीर, अपना पहनावा, ये सारी चीजें को निगोशिएट करते हुए, ऐसे एडजस्ट करते हुए चलते हैं। तो आफ्रा पूछ रही है कि क्या आपके ऐसे कोई एक्सपीरियंस है जब आपने ऑनलाइन कुछ डालते हुए या कुछ दर्शाते हुए सोचा हो दो बार कि लोग क्या कहेंगे? বিশেষ করে আমি এখন পর্যন্ত অনলাইনে কিছু দিতে পারি না, কারণ দেওয়ার আগে আমাকে বারবার ভাবতে হয় যে আমার গ্রামের আত্মীয় স্বজন কিংবা আশেপাশে কিংবা অনলাইনে কেউ দেখবে, দেখে হয়তো আমাকে মেনে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সেটাই হয়। যখন আমি যে কোনো পোশাক পরি, পোশাক পরে আগে আয়নার সামনে দাঁড়াতে, সেটা পরে বেরোনো যাবে কিনা, ঠিক না। ভেতরে যদিও একটা থাকে যে হয়তো একটু আজকে অন্যরকম ভাবে বেরোবো, কিন্তু হয়তো একদম গ্রামে বাস করি তো সেটা হয়ে ওঠে না। এবং মনে হয় যে আমরা এটা ভাবতে ভাবতে যেন নিজেদের স্বপ্নগুলোকে চেপে রেখে এই। तो ये कह रहे हैं जैसे ये घर से निकलते हो 2 बार आईने में देखती है खुद को कि उन्होंने क्या पहना है, क्या ये प्रॉपर है, ऑनलाइन डालते हुए भी सोचती है। और काफी टाइम हम वो ड्रेस नहीं पहनते, राइट, चलो जाने दो, कौन इतना सोचेगा। और वैसे ही सेम तरीके से हम ऑनलाइन भी पोस्ट वगैरह नहीं कर पाते हैं खुद के। और हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारी जो आज़ादी है, वो कहीं ना कहीं दबी रह जाती है। तो ये फिजिकल, डिजिटल, ऑफलाइन, ऑनलाइन का ये जो कनेक्शन है, हमारी ऑनलाइन जिंदगी वैक्यूम में या सेपरेट नहीं रहती। जो नियम डिजिटल, नॉन डिजिटल जगहों पे, ऑफलाइन जगहों पे देखने को मिलती है, वही चीजें हमारी एक्सपीरियंस को शेप करती है डिजिटल स्पेस पर। In the case of the man, the clothes were never thought of as anything to be considered. तो जो लेफ्ट में जो लड़का है, ये एक डांसर है जो स्ट्रीट में डांस करता है हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे रील्स बनाता है और काफी अच्छा डांस करता है और ऑनलाइन डालता है। जो राइट में लड़की है, ये कोलकाता की है। दुर्गा पूजा के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे रील्स बनाए बॉलीवुड में डांस करते हुए, पंडालों में वगैरह, पब्लिक प्लेस में दोनों डांस करते हैं। लेकिन जो लड़के के वीडियो में कमेंट्स आते हैं वो है कि वाह क्या अच्छा नाच रहा है, स्ट्रीट डांसर को सपोर्ट करो, क्या टैलेंटेड है ना। और जो इसके कमेंट्स आते हैं, देखो कैसे करके
और अगर ये लड़के के वीडियोस आप देखेंगे, आप देख पाओगे लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं, और लड़के के लिए गेज बिल्कुल अलग है, एकदम ऐसे अप्रिशिएट करते हुए उसको पैसे देते हैं वगैरह, लेकिन इसको इसके कपड़ों पे, उसके बॉडी पे ऐसे नजर डालते हैं, कमेंट्स पर भी उसके बॉडी के ऊपर कमेंट करते हैं, लड़के ने क्या पहना, कैसे डांस करे, उसके बॉडी के बारे में कोई नहीं बात करे। तो दोनों सेम चीज कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में नाच रहे, दोनों अच्छे डांसर हैं, लेकिन ये डिफरेंस है समाज कैसे देखता है। Have any of you seen other queer influencers or seen any other situation like this happening in your circles? तो मैं जरा समराइज कर देती हूँ। ये है, ये मेरे फ्रेंड है, इन्होंने अपने ये एक नॉन बाइनरी ट्रांस पर्सन है, जो कि जेंडर अफर्मिंग जो केयर होता है, जो जेंडर अफर्मिंग जो सर्जरीज होते हैं या फिर कुछ भी मेडिकल या फिर कुछ भी जेंडर अफर्मिंग रिलेटेड थेरेपी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो एक क्वेयर ट्रांस पर्सन के लिए बहुत आवश्यक, बहुत मतलब नेसेसिटी है, उनके लिए उन्होंने डोनेशंस रेज करने के लिए एक पोस्ट डाला और उसके बाद में ये कमेंट आप देख सकते हैं। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक ऐसा नहीं है कि जो मर्द होते हैं, जो स्ट्रेट हेटेरोसेक्सुअल जो मर्द होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अगर एक आदमी जो स्ट्रेट है, हेटेरोसेक्सुअल है, उसको अगर 10 प्रॉब्लम आते हैं तो शायद एक महिला को 50 आए और एक क्वेयर ट्रांस व्यक्ति को 100 आए। तो ऐसे हम आइडेंटिटी या परिचय से जुड़े हुए, जेंडर से जुड़े हुए ये जो बाधाएं हैं, जो नियम हैं, ये हमें इम्पैक्ट करती है। तो ऐसे आपने कुछ एक्सपीरियंस आपने देखा हो कि कोई क्वेयर या ट्रांस इंसान को ऑनलाइन उनके एक्सप्रेशन या उनके बॉडी या उनके ओपिनियंस पे कुछ कहा जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। तो जैसे आप पहले पूछ रहे थे उसके ऊपर जो वर्ड बॉडीज आर एक्सेप्टेबल पे मैं एक ऑब्जर्वेशन देख रही थी कि वैसे ही अभी ट्रेंड शुरू हुआ है विच इज कॉल्ड पापा की पटेल, एंड उस पर लोग वीडियो लगाते हैं कि लड़कियों का एक्सीडेंट हो रहा है एंड उसका एक्सीडेंट हो रहा है क्योंकि वो पापा की पड़ी है स्कूटी का डाको ही तय बच जाएगी। तो एक उस कॉन्टेक्स्ट में को ये बोलना था, इसमें आई थिंक मेरे साथ थोड़ा खुद पर्सनली होता है क्योंकि मैं नेल पेंट लगाती हूँ, अंगूठी पहनती हूँ, कभी कभी मैं नोज पेन पहनती हूँ, तो उसमें मेरे को थोड़ा डर लगता है कि दोस्त बोलेंगे कि बहुत अच्छे लग रहे हो, मगर उसमें थोड़ा डर भी होता है कि कोई कुछ सुना देगा। मगर उससे ज़्यादा एक बड़ा डर होता है कि ये फोटो अगर किसी और ने देख ली, पापा के दोस्तों ने देख ली, तब क्या होगा, तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसको ध्यान में रख के बहुत बातचीत करना पड़ता है और पोस्ट डालना पड़ता है। तो ऑनलाइन दुनिया में भी हम ऐसे बाइनरी में सोचते हैं। मैंने नोटिस किया गांव में जैसा कुछ लड़के होते जो उसने दे दिया लेडीज के जैसे कुछ होते तो उसके गांव के लोग कहते हैं या कुछ लड़के से आते हैं तो नेगेटिव बातें करते हैं उसके बारे में, वो लड़के होके भी लेडीज की तरह फेवर कर रहे हैं, इसलिए उसको बहुत चिढ़ाया जाता है और मेंटली वो एकदम खराब हो जाता है। वो एक प्रॉब्लम है, हर जगह मैंने देखा है। And then, as a consequence of this, you know, as these kind of aggressions exist in our both offline as well as online worlds, people find it difficult to feel belonging in these spaces. When really these spaces were supposed to be claimed by all people. But because of the way that they've been treated, it's difficult for you to feel as much a part of it as everybody else. I think the broader question we want to think about is how do we imagine a world in which women, queer, trans persons own their digital bodies? So if we talk about the examples that we have seen so far, so the Delhi boys locker room case, the comparison between the two dancers and how their bodies were perceived differently online, and the third is Reem, the non-binary trans person who put out a call for donations. In these three situations, like how can we create spaces where people feel safe enough to do the things that these people were doing in online spaces? How do we think of a world
with maybe safeguards. Maybe that's an example that we can try to explore. What do we need to make people feel safe in these spaces? যেহেতু আমরা গ্রামে বাস করি তো যার কারণে আমরা সেই রকম মানে বেরোনোর টাইমে আমি হয়তো বাড়িতেও যদি ম্যানেজ করতে পারি, কিন্তু আত্মীয় স্বজন কিংবা পাড়া প্রতিবেশী যখন দেখবে তখন বাবা মাকে বলবে, সেখান থেকে আরো কাউকে বলবে, এই করে করে একটা অনেক অশান্তির সৃষ্টি হয়। যার কারণে আমরা এরকম ভাবে করতে পারি না। এইভাবে করতে করতে একই রকম ভাবে আমাদের গ্রামের মেয়েরা এরকম ভাবে নিজেদেরকে করে, তার মধ্যে কিছু কিছু আছে যারা হয়তো আত্মীয় স্বজনের এইসবের কথা না ভেবেও তারা চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা চেষ্টা করতে গিয়ে কি হয়, মানে সমাজের কাছে অতিরিক্ত খারাপ হয়ে যায়। এই ভেবে আমাদেরকে একটু চলাফেরা করতে হবে। तो ये बात करें अलग अलग टाइप के नेगोशिएशन के, मतलब बस अपने फैमिली नहीं, बड़ा जो समाज है, फैमिली अगर आपका कभी साइड लेता है और अगर आपके ये एक्सप्रेशन को वो लोग डिफेंड करते हैं तो समाज उनको बुरा बोलते हैं। तो ये जो नेगोशिएशंस है, अलग अलग गेट कीपर्स है, उन सब से नेगोशिएट करने का जरूरत पड़ता है ताकि हम आज़ादी के साथ ऑनलाइन व्यवहार करें। So the next thing we want to talk about today is expression. So the ways in which we express ourselves and how we self-censor ourselves because of the way that we are perceived online. So there's like a very clear binary between good women and bad women. And this is something that almost without me even explaining what I mean, you probably already know what I mean. Like we have certain ideas of what good women do and what bad women do. And we'll just look into that a little bit. अच्छी लड़की बुरी लड़की, मतलब अच्छा है मतलब ये क्या है, मतलब ये तो मतलब कुछ भी है, मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया है बुरी लड़की होने का। कोई कुछ लोगों के लिए फोन पे बात करना है बुरी लड़की, फोन पे बात करेगी, लड़के से मिलेगी, शादी करेगी, भाग जाएगी, बुरी लड़की होगी। थोड़े और मतलब इसको प्रोग्रेसिव हाउस होल्ड्स कहते हैं, फोन पे बात तो कर सकते हैं लेकिन शायद कुछ कंटेंट उनको देखना अलाउड नहीं है ना। या फिर कुछ लोगों के लिए मतलब सोशल मीडिया किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि अनजानों से बात कर रही है क्या, रात को फोन पे बात कर रही है क्या, तो ये सारी बुरी लड़की के कैटेगरीज मतलब अनलिमिटेड। How many of you have seen this poster before? This ideal boy? Yeah? आदर्श बालक है। Yeah. So this is a very classic image of like what an ideal boy does. Gets up early in the morning, brushes his teeth, goes to school and reads attentively. And these are all like very specific actions that you have to do to be labeled a good boy. So now we were wondering, have you seen a similar thing for women? Because realistically, as we're living our lives, we know that there are rules to the ways that we live our lives. We know that there are certain things we need to do to be good and certain things we need to do, not need to do, but if we do, we are deemed bad. So this poster was created by students of Shrishti College in 2015, and they made it as a joke basically. But they had multiple images that they put up and they just tried to make a spoof out of the ideal boy like imagery. And they said a bad girl pouts, a bad girl eats too much, a bad girl watches pornography, can't make around rotis. So these are all things that, these are like mental rules that have been created in all of our minds in some way or the other. That if you do certain things you're good and you do some things you're bad. ठीक है, तो हम ये जरा सोचेंगे और शायद थोड़ा टाइम लगे हमें एब्जॉर्ब करने में, राइट। तो ये जो अच्छे बुरे की बाइनरी होती है डिजिटल दुनिया में भी देखते हैं, तो ये बस एक थॉट हमें इंट्रोड्यूस करना था और उसके बारे में हम जब इस्तेमाल करते हैं डिजिटल स्पेस और आगे इसके बारे में सोच सकते हैं। हमारा लास्ट एक टॉपिक है प्राइवेसी, मतलब जो गोपनीयता सुरक्षा बोलते हैं, राइट। प्राइवेसी को लेके और कंसेंट मतलब मर्जी, और ये दो चीजें कैसे देखी जाती है। हमें अक्सर बोला जाता है कि प्राइवेसी तुम्हारी ड्यूटी है, कि तुम कुछ चीजें तुम्हें प्राइवेट रखनी ही है। कुछ फोटोज बस अपने फ्रेंड्स को दिखाना अलाउड है, पब्लिक अपने फोटोज मत रखो।
तो एक ड्यूटी की तरह ये लड़कियों पे, महिलाओं पे या ट्रांस व्यक्तियों पे इम्पोज किया जाता है प्राइवेसी, और उसमें कंसेंट को बिल्कुल अनदेखा किया जाता है, मर्जी को बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है कि मेरी क्या मर्जी है, क्या मेरी मर्जी है कि मैं पब्लिक सब कुछ रखूं, तो वहाँ मेरी मर्जी मायने नहीं रखती। तो एक ऐसा हमारे पास एक स्टोरी आई थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो एक महिला थी जो लेस्बियन थी। लेस्बियन पता है सबको, महिला जो शायद दूसरे महिला को पसंद करते हो, राइट? ये एक सेक्सुअलिटी, क्वेयर सेक्सुअलिटी है। तो एक लेस्बियन महिला थी, वो अपने जो माँ बाप है उनके घर से दूर एक दूसरे शहर में रहती थी, काम जॉब करती थी। तो जब लॉकडाउन हो गया, वो अपने माँ बाप के घर पे उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो उनके फोन एक दिन अनलॉक था, तो उनके माँ बाप ने उनके फोन पे मैसेजेस पढ़ के ये पता कर लिया कि एक दूसरे महिला के साथ वो एक रिलेशनशिप में ही, रिश्ते में। उनका फोन ले लिया, उनको घर पे बंद कर दिया। उनके मम्मी पापा को पहले पता नहीं था कि उनको लेस्बियन है, तो उनको वो पता चल गया। और एक फोन से शुरू हुई, एक मैसेज से शुरू हुई ये जो हैरेसमेंट, उनकी पूरी जिंदगी पे, उनके रिलेशनशिप पे, उनके बाहर जाने के आज़ादी पे, सब जगह पे ये एक बहुत बड़ी एक हैरेसमेंट और बहुत बड़ी एक बाधा बन गई। तो ये जो प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, उनका फोन खोल के उनके मैसेजेस पढ़े गए, जहाँ प्राइवेसी को उनका अधिकार माना नहीं गया, और घर वालों को लगा कि इसका फोन पे उसका मतलब प्राइवेसी लगाने का कोई हक नहीं है, हम उसका मैसेज पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल प्राइवेसी से शुरू हुई ये बात, उनकी असली मतलब ऑफलाइन एक्चुअल जिंदगी पे इसका इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है। थैंक यू सो मच। और